and on we'll go. Today we are going to start with the sources of recruitment. What is recruitment? So I am already telling you recruitment means, what is the recruitment? Recruitment means searching the prospective employees for the organization. Searching the prospective employees for the organization and inspire them or stimulating them to apply in our organization is known as recruitment. What is that? Is known as recruitment. So now today we have different sources of recruitment. So what are those? We have two sources of recruitment. One is internal source of recruitment and another is external source of recruitment. How many types of recruitment we have? One, we have internal source of recruitment and another is external source of recruitment. So what do you mean by internal source of recruitment? Whenever we arrange, whenever we fill the vacant post within the organization is known as internal source of recruitment. I repeat, whenever we filling the vacant post within the organization, it is known as internal source of recruitment. Right? Internal source of recruitment is also of two types. Internal source of recruitment is also of two types. One is for the transfer and another is for the promotion. One more we have layoff, but we have to learn only these two because in NCERT we have these two only. One is promotion and another is transfer. So what do you mean by promotion? What do you mean by promotion? So I hope today I use this stick. Why you all are thinking, sir, why this stick you are showing to us? तो मैं मारने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टिविटी शो करने वाला हूँ कि अभी आप देख रहे हो एक वर्टिकल लाइन दिख रहा है. दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड प्रमोशन. मीन्स सर मतलब देखिए प्रीवियसली यू आर हेयर, पहले आप यहाँ पे काम करते थे एंड यू गेट द प्रमोशन, यू आर कमिंग हेयर. When you get the promotion, your status is changed, right? And after this, you get the promotion to here. So this is called vertical movement of employee also. Promotion को हम vertical movement of employee भी कहते हैं. Why we call it as vertical movement of employee? Because in the previous time, employee is in that position. After that, the employees get the promotion and get for the higher scale or higher pay and for the higher status and move toward the next position. After some time he get the promotion again, so he go for the higher jobs. So this is all called promotion. I use this stick only to show you that promotion is called the vertical movement of employees in the organization. What is that? Vertical movement of employees of the organization is known as promotion. Here the employees are transfer from one place to another, from one position to another in a vertical way. In a vertical way, it is known as. So we learn our promotion. अभी हमने promotion पढ़ लिया. Now we are going to start with transfer. अभी हम किससे शुरू कर रहे हैं? ट्रांसफर से. Again you are able to see the stick. दिख पा रही है? यहाँ पर अब ट्रांसफर पढ़ेंगे. मैं आपको एक्टिविटी शो कर रहा हूँ, ये विजुअलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद इसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं कि अब ट्रांसफ़र क्या होता है. तो मैंने बताया प्रमोशन इज दिस एंड ट्रांसफ़र इज दिस. प्रमोशन इज दिस एंड ट्रांसफ़र इज दिस. आई एम नॉट डांसिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज दैट. ट्रांसफ़र मीन्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वर्कर. Promotion means vertical movement of worker. And what is that horizontal movement of worker? Means when a worker is working here, अगर कोई बंदा यहाँ पे काम करता है, किस पोजीशन पे? इस वाली पोजीशन पे काम करता है, और ये है
यूनिट 1 एक पर्सन को इसी पोजीशन पर, सेम पोजीशन पर लेकर आए लेकिन यूनिट 2 में, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर. Means the place of working is changed but the status is same. Place of working is changed but the status is same is known as transfer. What is that? It is known as transfer. I hope it is clear to you all. Now let us move on toward the next one. बट हम इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने से पहले वी आर कमिंग टू लर्न द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. What are the different external sources of recruitment we have, and we are learning each and every internal source or external source of recruitment. So first we have direct recruitment. What is the direct recruitment? Generally the direct recruitment is done for the unskilled workers. मीन्स इट इज़ अ वे, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, फैक्ट्री के बाहर नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिख देते हैं कि वी रिक्वायर दैट मच ऑफ वर्कर्स ऑन पर्टिकुलर दैट डे एंड द वर्कर्स आर असेंबल ऑन आउटसाइड द गेट ऑफ द फैक्ट्री एंड वी आर सेलेक्टिंग देम एंड टेक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज नोन एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. यहाँ पे हमें कोई सिलेक्शन टेस्ट वगैरह नहीं करने होते, तो देयर वी कॉल इट एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, राइट. Then we have casual collars. ये what are those casual collars? ये casual collars क्या होते हैं? Casual collars का मतलब है means whenever you are thinking, you are heard from your cousins or your sister or your neighbors that कि वो organization में गए थे अप्लाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पे वैकेंसीज खाली नहीं थी. वैकेंसीज खाली ना होने की वजह से उन्होंने मेरा रिज्यूम रख लिया या मैं अपना रिज्यूम जमा करके आ गया. तो यहाँ पे इन्हें क्या बोलते हैं? कैजुअल कॉलर्स कहते हैं. मतलब whenever there is a vacant post in the organization they call you and you can go and join the organization. मतलब जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए गया तो मुझे पता पड़ा कि वहाँ पे वैकेंसी खाली ही नहीं है, तो मैंने अपना रिज्यूम वहाँ पे जमा कर दिया और बोला कि whenever you have requirement you come, you can call me and I will join the class. मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा. तो दैट इज़ वॉट. तो जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर वैकेंट पोस्ट खाली होगी तो उन वापस सारे के सारे रिज्यूम्स को खोला जाएगा, जो परफेक्ट होगा उनको कॉल किया जाएगा, उनको बुला लिया जाएगा. दे आर कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? कैजुअल कॉलर. नाउ द थर्ड वन वी हैव एडवर्टीजमेंट. Advertisement is also an external source of recruitment where we are giving advertisement and the person who are, or the candidate or the prospecting candidate who are seeing that there should be a vacant post, they come and apply in the organization. This is known as advertisement. इसे हम क्या कहते हैं? Advertisement कहते हैं. Hope it is clear. Next is employment exchange. This is very important. Employment exchange is we generally call it as governmental organization है जहाँ पर बेरोजगारी को दर्ज कराया जाता है ना. मतलब इतना हिंदी में मैं आ गया. बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है whenever you don't have any job to do, so you are just going for that particular organization. आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, अपने आप को रजिस्टर्ड कराओ. क्या कराओ? अपने आप को रजिस्टर्ड कराओ. And when you get the registration over there, whenever the vacancies were there, they call you. You have to go and give the interview. मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो बेसिकली क्या है कि you are, whenever you don't have any job, you go and register yourself. Whenever there is a vacant post, जब भी वहाँ पे कोई vacant post होगी, they call you. वो आपको कॉल करेंगे. जब भी कोई इंटरव्यू होने वाला होगा वो आपको कॉल करेंगे. फिर अलग अलग कंपनीज वहाँ पे आती हैं, आपका इंटरव्यू लेती हैं. अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको लेके चली जाती हैं, अदरवाइज नहीं सिलेक्ट होगा तो फिर दोबारा से आपको बुलाएंगे. इट इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ये क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का फोर्थ टाइप है. ठीक है. नाउ वी हैव प्लेसमेंट एजेंसीज. प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होता है? प्लेसमेंट एजेंसीज का बेटा बेसिकली मतलब है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आपने सुना होगा naukri.com, सुना है? तो naukri.com मतलब ये एक ऐसी एजेंसीज हैं जो लोग रजिस्टर्ड, जो मतलब ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती. गवर्नमेंट की में तो जब ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहलाता है. जब ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की नहीं है, किसी प्राइवेट बंदे की है, तो उससे हम लोग बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज. क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंसीज. अगर आपने नाम सुना हो
तो ये बहुत फेमिलियर है और शायद मैंने भी आपको इससे पहले वाले टाइम पे मैंने आपको बताया था, पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि प्लेसमेंट एजेंसीज और कंसल्टेंसीज एक बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं अपने डिफरेंट पीपल्स के साथ, तो क्या करना है, प्लेसमेंट एजेंसीज खोल के बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट तो है नहीं, एक शॉप चाहिए, 2 चेयर और एक आपकी चेयर और टेबल होनी चाहिए। एट दैट टाइम क्या करना है, जो लोग आपके यहाँ पे आएंगे उनसे रजिस्ट्रेशन करा लेना है, राइट, तो वो लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर जनरली आपने देखा होगा ऐसे टाइप की जॉब्स होती हैं जो अगर हम आपकी जॉब दिलाएंगे तो पहली सैलरी आपकी हमारी होगी या हाफ सैलरी हमारी होगी, तो दैट इज ऑल कॉल्ड प्लेसमेंट एजेंसीज। ये क्या कहलाती है, प्लेसमेंट एजेंसीज कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया naukri.com। क्या एग्जाम्पल है, naukri.com। इट इज क्लियर। नाउ let's move toward the campus recruitment. Now we have campus recruitment. What is that campus recruitment? Means when you are learning in the organization, means when you are learning in the institution or a colleges, when you are studying in the colleges, the companies are coming, they are taking your interview and take to you to their company. It is known as campus recruitment. Means जब हम कॉलेज में जाके बच्चों का इंटरव्यू लेके उनको लेकर आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैंपस रिक्रूटमेंट। उसके बाद आता है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज रिकमेंडेशन। एम्प्लॉइज रिकमेंडेशन क्या होता है, मीन्स वेन एवर वी हैव अ वैकेंट पोस्ट, तो हम अपने एम्प्लॉइज को बोल देते हैं कि भाई अगर आपकी जान पहचान में कोई बंदा हो जिसको जॉब करनी हो तो उनको भेज देना। तो एम्प्लॉइज जब भेज देते हैं ना कि भाई मेरे चाचा का बेटा है, मेरे ताऊ का बेटा है, मेरे मामा का बेटा है, राइट, दैट इज वो, दिस इज ऑल कॉल्ड रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज रिकमेंडेशन कहते हैं। किसी एम्प्लॉय ने हमारे यहाँ पे अपने किसी परिचित को भेज दिया, राइट। नेक्स्ट वी हैव लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर इज जनरली हम लोग बात करते हैं कि एक पर्सन है, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। मीन्स जब भी हमें कोई लेबर की रिक्वायरमेंट होगी हम सीधे उससे कॉल करेंगे, वो सारी लेबर्स को लेकर आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ठेकेदार, राइट। क्या बोलते हैं, ठेकेदार, दैट इज कॉल्ड लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट वी हैव वेब पब्लिशिंग। हमने हमारे यहाँ पे जो वैकेंसीज थी, जो वैकेंट पोस्ट खाली थी, हमने वेब में पब्लिश कर दिया, मतलब इंटरनेट पे डाल दिया। जब लोग हमारा एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उससे हम बोलेंगे वेब पब्लिशिंग, राइट। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। हम लोग टीवी पे एडवर्टीजमेंट दे देते हैं। जनरली हमारे यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स जो आते हैं, नीचे एक पर्टिकुलर इतना बड़ा पार्ट होता है जिसमें आपका नाम आता रहेगा, आपका एडवर्टीजमेंट आता रहेगा, मूव ऑन करता रहेगा। इससे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। ये टेलीविजन का एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वी हैव मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट आर दोज? फर्स्ट मेरिट इज एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड। अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करोगे तो एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे। कैसे मोटिवेट होंगे? वो सोचेंगे अगर अभी इसको अगर प्रमोशन मिला है तो कल मेरे को भी मिलेगा, तो मैं भी हार्ड वर्क करना शुरू कर देता हूं। तो दिस इज व्हाट एम्प्लॉइज मोटिवेशन। इसे हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉइज मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। थर्ड वी हैव सिंपल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल हो जाता है। देखो, अगर मैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करूंगा तो क्या होगा? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के टाइम पर मेरा जो मेथड है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई पहले उनको पहले इन्विटेशन दो, फिर वो आएंगे, फिर बहुत सारे टेस्ट लूंगा, फिर प्लेसमेंट होगा, फिर ट्रेनिंग होगी, बहुत लंबा सा समय है। लेकिन अगर आप इंटरनल कर रहे हो तो सिंपल प्रोसेस है सिलेक्शन का इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से। ये थर्ड है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब बहुत सस्ता है। जब आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को आपने प्रमोशन दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। वी कॉल इट एज इकोनॉमिकल। हम उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल बोलते हैं। सस्ता बोलते हैं ना, क्योंकि हमें खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कोई एडवर्टीजमेंट देना, ना कोई सिलेक्शन कराना, राइट। नेक्स्ट, ईजी एडजस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉय पुराना होगा तो वो इजीली एडजस्ट कर पाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है उसको जो नया बंदा आएगा उसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जो पुराना बंदा है वो पहले से समझा हुआ है तो वो बहुत इजीली क्या कर पाएगा? अकोमोडेट कर पाएगा, उसको एडजस्ट कर पाएगा। वी कॉल इट एज इजी एडजस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? डीमेरिट्स पढ़ रहे हैं। किसके? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। वो क्या क्या है? पहला, स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस।
जब अपने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही करोगे तो फिर बाहर का टैलेंट तो हमारे आ ही नहीं पाएगा। तो जितना हमारे आगे एम्प्लॉय को पहले से आता था बस उतना ही वो आगे कर पाएगा। लेकिन अगर बाहर से एम्प्लॉय लेके आते तो फ्रेश टैलेंट आता, नया तरीका आता काम करने का, लेकिन अब नहीं आ पाएगा। हैम्परिंग द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की स्पिरिट को बिल्कुल खत्म कर देता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज कम है तो उसे पता है इसका एम्प्लॉय, इसका प्रमोशन हुआ है, इसके बाद मैं ही हूँ, मेरा ही प्रमोशन होगा, मैं कुछ करूँ चाहे ना करूँ। दैट इज कॉल्ड हैम्परिंग द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की स्पिरिट को खत्म कर देता है कौन? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक, एम्प्लॉयज लेथार्जिक बन जाते हैं, बहुत लेजी हो जाते हैं। क्यों लेथार्जिक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में कोई हटाएगा तो है नहीं, हमारा ही रिक्रूटमेंट होने वाला है, हमारा ही प्रमोशन होगा। तो इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक, दे कैन बिकम लेजी। कैसे बन जाते हैं? लेजी बन जाते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स क्लियर हो गए होंगे फॉर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम बात करेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स की। कहाँ के? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। मेरिट्स of external source of recruitment and demerits of external source of recruitment। सबसे पहले पढ़ते हैं merits of external source of recruitment क्या होते हैं। तो फर्स्ट है qualified personnel। देखो अगर कोई बाहर से टैलेंट आएगा तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे हर्डल्स को पास करता हुआ आया, बहुत सारे टेस्ट हमने उसके लिए, इसका मतलब क्या है? वो हाईली क्वालिफाइड होगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। सेकेंड है वाइडर चॉइस। वाइडर चॉइस का मतलब 100 लोगों ने अप्लाई किया था, हमने किसी एक को सिलेक्ट किया, तो बहुत सारी चॉइस थी हमारे पास, उनमें से हमने किसी एक को सिलेक्ट करना, मतलब कहलाता है वाइडर चॉइस। क्या कहलाता है? वाइडर चॉइस कहलाता है। फिर आता है नेक्स्ट फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट का मतलब क्या है? जब हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे तो बाहर का टैलेंट हमारे यहाँ पे आएगा, फ्रेश टैलेंट आएगा। जो बाहर के एजुकेटेड पर्सन हैं, जो नए नए बनकर आए हैं, वो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और क्या लेकर आएंगे? फ्रेश टैलेंट लेकर आएंगे, नए नए तरीके लेकर आएंगे काम करने के। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज फ्रेश टैलेंट। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अभी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या होता है? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब है अगर ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से लोग आने लगेंगे तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा कि ऐसा ना हो प्रमोशन के टाइम पर मुझे प्रमोशन ना मिले, बाहर के किसी बंदे को प्रमोशन मिल जाए। इसलिए कंपटीशन क्रिएट होने लगता है, हम भी ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। सारे वर्कर जो लेथार्जिक हो गए थे अब वो क्या हो गए? हाईली इफेक्टिव हो गए, एफिशिएंट हो गए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन स्पिरिट कैसा हो गया है? अच्छा हो गया है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे मेरिट्स की बात। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम क्या बात करेंगे? डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो देखिए, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसमें डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। अब डिससेटिस्फैक्शन एग्जिस्टिंग स्टाफ में कैसे क्रिएट होता है? देखो, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत समय से काम कर रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मेरा प्रमोशन होगा, लेकिन जब बारी प्रमोशन की आई तो आपने बाहर से किसी को बुला के प्रमोशन दे दिया, तो क्या हुआ? मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं इतना पुराना हूँ तब भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? डिससेटिस्फैक्शन अमंग दी एग्जिस्टिंग स्टाफ। एग्जिस्टिंग स्टाफ में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, मेरे को प्रमोशन क्यों नहीं मिला, उसको प्रमोशन क्यों मिला, इसी को क्या बोलते हैं? डिससेटिस्फैक्शन अमंग दी एग्जिस्टिंग स्टाफ। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है लेंदी प्रोसेस। आप सबको पता है ना कि प्रोसेस बहुत लेंदी है। कैसे लेंदी प्रोसेस है? पहले क्या करोगे? पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट करोगे, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट करोगे, फिर सिलेक्शन होगा, फिर प्लेसमेंट होगा, फिर ट्रेनिंग होगी, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, फिर प्रमोशन होगा, फिर कंपनसेशन होगा। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होगा। मींस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैसा है? टाइम कंज्यूमिंग। उसके बाद आता है लास्ट, कॉस्टली प्रोसेस। प्रोसेस बहुत कॉस्टली है। अब आप बोलोगे सर कॉस्टली कैसे? देखो, सबसे पहले रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दिया या डिफरेंट जो भी आपने वे फॉलो किया था उस वे के हिसाब से आपने उनको बुलाया, वो खर्चा हुआ। फिर जब लोग हमारे यहाँ पे आए, उनके टेस्ट किए, सिलेक्शन टेस्ट हुआ,
तो बार बार रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट और अलग टाइप के टेस्ट आपने अरेंज करे। फिर जब वो लोग बहुत सारे इकट्ठे होकर आए तो आपने उनको ऑफर भी किया कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए भी, तो वो खर्चा हुआ। फिर जब वो हमारे यहाँ पे आएगा उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग देंगे, तब वहाँ पर थोड़ा सा हमारा एक्सपेंस होगा। तो दिस इज़ व्हाट कि वो प्रोसेस क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है। दूसरी बात, उस प्रोसेस को करने के लिए हमें बाहर से HR मैनेजमेंट बुलाना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाहर से आएगा, वो उनका टेस्ट ले पाएगा। इसलिए ये प्रोसेस कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। क्या ये यहाँ तक क्लियर है सबको?